તો આ લેક્ચરની અંદર આપણે કરીશું વેરી શોર્ટ ક્વેશ્ચન ઓફ ચેપ્ટર નંબર 1. જો મારા આગળના બે લેક્ચર ખબર પડી ગઈ હોય તો આ લેક્ચરની અંદર પણ તમને VSQ ફટાફટ આવડશે અને આજના લેક્ચરમાં તમે VSQ કરો એટલે તમારું કામ કમ્પ્લીટ 100% પૂરું. બરાબર? ફરીથી બધાના નામ લઉં છું અલગ અલગ અને તમારા આન્સર આપવાના છે. બરાબર? ચલો અહીંયા પહેલું નામ દેખાય છે પલક. हाँ सर. બોલો બેટા. What is partnership? વોટ ઇઝ પાર્ટનરશિપ? તો પાર્ટનરશિપ શું છે એ આપણને પૂછે છે. વોટ ઇઝ પાર્ટનરશિપ? ચલો ડેફિનેશન બોલી જાઓ. જોઈને બોલવી હોય જોઈને બોલો, જાતે આવડતું હોય જાતે બોલો, કોઈ ચિંતા નથી, પણ બોલો. Sir, partnership is the relation between the person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. ભાઈ પાર્ટનરશિપ ઇઝ અ રિલેશન બિટવીન પર્સન્સ વચ્ચેના રિલેશન છે ફોર ડુઈંગ બિઝનેસ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટિંગ પ્રોફિટ. Now this business is carried on by one person or all persons or some persons who are enter in partnership. It means any partner can manage it on behalf of all. બધાના behalf થી બધાને એનું જે પણ ડિસિઝન આવે એ એક્સેપ્ટ કરવાનું. એ રીતે એને શું થાય છે પાર્ટનર્સ. એ જે ભેગા થઈને બિઝનેસ કરે છે એને પાર્ટનરશિપ કહે છે. હવે આ તમારે એક્ઝામમાં લખતા આવડવું જોઈએ પરફેક્ટલી. બરાબર? પલક એકવાર ફરીથી મસ્ત બોલી જાય. Partnership is the relation between the person who have agreed to share the profit of a business carried by all or anyone or acting for all. ओके सिंपल. सर मैं और अच्छे से बोलूं. हाँ बोल और अच्छे से बोल. पार्टनरशिप फर्म इज अ रिलेशन बिटवीन टू पीपल और मोर sharing profit and loss in ratio and managed by one or all or one acting for all. ठीक है ओके दोनों राइट है. चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पे नाम दिख रहा है युवराज. बोलो बेटा. યુવરાજ બેટા હા સર. બોલવાનું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. યસ સર. ભાઈ એટેન્ડન્સ બાકી હોય What કર દો. is 6 જણની એટેન્ડન્સ આવી છે. what is the maximum and minimum limit of partner to constitute a partnership firm? બોલો મેક્સિમમ અને મિનિમમ લિમિટ કેટલી? સર maximum 100. ના સર હું બોલું. કોણ નુપુર? બોલ બોલ. સર મિનિમમ 2 અને મેક્સિમમ 50. મેક્સિમમ 50. તો આ યુવરાજ ખોટું બોલે છે 100. સર એ પહેલા હતું પછી 50 થઈ ગયું. હા હવે પરફેક્ટ છે. એટલે અત્યારે આપણે લખવું હોય તો કેટલા લખવાના? 50 યસ. ન્યુ રૂલ. અચ્છા મને ચલો તમે લોકો કહો મારે એવી કઈ છે જેમાં અનલિમિટેડ લોકોને ભેગા કરી શકાય? અરે હા સર એ બીએ માં ભણ્યા હતા યાદ હતું મને. બોલો. સર કંપની. ના સર કંપનીમાં 200. કંપનીમાં શેર હોલ્ડર્સ હોય અને પ્રાઇવેટ કંપનીમાં લિમિટ જે તું કહે છે બરાબર છે 200 2 અને 200. પબ્લિક કંપનીની અંદર અનલિમિટેડ શેર હોલ્ડર્સ હોય પણ હજી એક એવું ફોર્મ છે જેની અંદર અનલિમિટેડ મેમ્બર્સ કરી શકાય. કોઈને પણ આવડતું હોય યાદ કરીને કહો. હું કહી દઉં છું કોઓપરેટિવ સોસાયટી.
કોઓપરેટિવ સોસાયટી એવી છે જેની અંદર તમે અનલિમિટેડ મેમ્બર્સ ભેગા થઈ શકો અને સેમ ઇન્ટેન્શન, જે કરવાનું છે એ જ કરવાનું છે સેમ માટે, અને પ્રોફિટ પણ બધા મેમ્બર વાઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય. તો આ બી થોડું યાદ હોવું જોઈએ. આપણે બધા ટાઈપનું ભણવાનું. આપણે કોમર્સ સ્ટુડન્ટ બિઝનેસ કરીશું તો કેટલી કેટલી રીતે કરીએ. એક સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ જાતે કરીએ, પાર્ટનરશિપ બનાવીએ, પછી સીધી કંપની પર ચડી જઈએ એવું ના હોય. કોઓપરેટિવ સોસાયટી પણ કરી શકીએ. પછી કંપનીમાં બે છે, પ્રાઇવેટ અને પબ્લિક. પ્રાઇવેટ બી બનાવી શકો છો, પબ્લિક બી કરી શકો છો. બસ બસ આના સિવાય કોઈ બિઝનેસ થાય નહીં. આટલો જ, આટલી રીતે બિઝનેસ કરી શકો. અનલિમિટેડ કેપિટલ જોઈતી હોય ને અને રિસ્ક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવું હોય તો પબ્લિક કંપની બનાવવાની. રિસ્ક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જાય અને કેપિટલ મેક્સિમમ આવે, મોટો બિઝનેસ કરી શકો, બધાને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ બી કરી શકો. ચલો, કોઈ ડાઉટ? કોઈને હોય તો પૂછો. અચ્છા, અહીંયા ક્વેશ્ચન શું હતો? પાર્ટનરશિપની વાત છે સર. મિનિમમ ટુ મેક્સિમમ 50 જે અત્યારે ચાલે. ચલો, વેરી ગુડ યુવરાજ. તે 100 વાંચેલું છે પણ એ બદલાઈ ગઈ ને પછી 50 થયું છે, એ યાદ રાખવાનું છે. નહીં તો ભાઈ ક્લિયર લખવાનું. આ એક્ટમાં 100 હતું, પછી 50 થઈ ગયા. પલક થઈ ગયું, યુવરાજ થઈ ગયું. હવે નામ દેખાય છે. વિશાલ, બોલ. यस सर. बोलो सर खाली क्वेश्चन नंबर बता सकते हो? मैं वो बस में था. 3 और पेज नंबर सर प्लीज. 30. What is the partnership deed for a firm? बोलो. पार्टनरशिप डीड पार्टनर के लिए क्या है? सर ये क्या है, पार्टनरशिप डीड मतलब एक एग्रीमेंट होता है, उसमें सब लिखा होता है कि रेशियो कितना होगा, कौन कितना कैपिटल है. ऐसा नहीं पूछा है कि पार्टनरशिप डीड में क्या होता है. पार्टनरशिप डीड तो हो गई, अब वो फर्म के लिए क्या है? एक ही सेंटेंस है, अरे एक ही वर्ड है. बोल जतिन. सर मैं बताऊं? जतिन, उसके पास क्वेश्चन नहीं है ना, वो आंसर देगा लेकिन ऐसा बोलता है ना. चलो नहीं है. उसके बाजू में नाम दिख रहा है मिश्री. बोलो. सर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन. वेरी गुड. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन. पूरा एडमिनिस्ट्रेशन डीड के हिसाब से होता है, कोई झंझट ही नहीं. जो डीड में लिखा है वो करो. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, लॉ बन गया. डीड यानी हमारी पार्टनरशिप का लॉ, उसके हिसाब से सब कुछ होगा. अगर उसके हिसाब से नहीं हो रहा है तो सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट क्या बोलती है. किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो. वेरी गुड मिश्री. मैंने पहले ही बोला टेक्स्ट बुक है, देखो तैयार करके. यहाँ पे बैठे हो ना, तैयार करके आओ फिर बैठो, या क्वेश्चन आंसर लिख के रखो फिर बोलो. मुझे चिंता नहीं है. एक बार बोलोगे ना, सबके साथ सुनोगे ग्रुप में, तो बाद में एग्जाम में कुछ याद आएगा, वरना नहीं आएगा. चलो ध्वनित बोल. Describe the objective to prepare a partnership deed. पार्टनरशिप बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों बनाऊंगा पार्टनरशिप? हाँ आंसर दो. सर पार्टनर्स के बीच जो झगड़े बगड़े होते हैं या कुछ उनमें डाउट हो जाता है, उनको सॉल्व करने के लिए बना सकते हैं. हाँ ये इसीलिए बनाते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में लिखना है. 1 मार्कर क्वेश्चन है, कैसे लिखेंगे? A partnership deed is an important and useful for solving disputes or any misunderstanding among the partners. Yes, okay, perfect. Solve dispute among the partners or misunderstanding. Simple. ये करने के लिए हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं.
इम्पोर्टेंट थिंग, परफेक्ट। चलो उसके बाद नाम है वैदेही, बोलो बेटा। Yes, sir. How are the administrative problems solved when the no agreement is signed between the partners? ओके, अगर पार्टनर ने एग्रीमेंट बनाया ही नहीं है, डीड बनाई नहीं है, तो कैसे सॉल्व होगा सब प्रॉब्लम? बोलो वैदेही बेटा। According to the Indian Partnership Act 132, 1932। 1932. यस यस, वेरी गुड। अगर आपका डीड बना नहीं है, गवर्नमेंट ने तो बना के रखा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो लिखा है उसके हिसाब से सब सॉल्यूशन मिलेगा। सिंपल, परफेक्ट है। चलो नाउ आफ्टर वैदेही પલક ડન, મિશ્રી ના, મિશ્રીએ તો બીજાના ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપ્યો હતો ને, બોલ મિશ્રી, હવે તારો વારો। Describe partners capital account methods of a partnership firm. ઓહો, પાર્ટનર્સ કેપિટલ એકાઉન્ટ મેથડ, કઈ મેથડ છે ભાઈ? સર એક તો આ સર બે છે, ફ્લક્ચ્યુએટિંગ કેપિટલ અકાઉન્ટ મેથડ અને ફિક્સ્ડ કેપિટલ। આ બે માંથી કઈ છે? આ બંને કઈ છે? સર કેપિટલ અકાઉન્ટ ને કરંટ અકાઉન્ટ એ ફિક્સ છે અને જે છે કેપિટલ અકાઉન્ટ એ ફ્લક્ચ્યુએટિંગ છે। વેરી ગુડ, વેરી ગુડ, પરફેક્ટ। ચલો મિશ્રી પછી નુપુર। हाँ sir. नेक्स्ट। Profit of partner is credited to which account under fixed capital account method? A fixed capital account method. Profit is recorded in which account? Current account. Partner Very current good. account. Which side? Credit side. Very good. Profit is credited, income is credited, expense is debited. So here credit. Simple है। Perfect Nupur, perfect। चलो next विवेक। Additional capital introduced by partner on permanent basis is credit to which account in the fixed capital accounts method? Okay, fixed capital account method। Additional capital brought by partner, where it is recorded? पता ना हो तो बोलने का पास। दूसरे को टाइम नहीं है ना अपने पास, दूसरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट बोलना है पास। सर नहीं आता है सर, पास नहीं आता। सर मैं बोलूं? बोल। करंट अकाउंट। गलत है, कैपिटल अकाउंट में ही आएगा। एडिशनल कैपिटल आता है ना, तो कैपिटल अकाउंट में ही आता है। परमानेंट बेसिस, परमानेंट बेसिस पे एडिशनल कैपिटल बिजनेस में आया, कैपिटल अकाउंट में आएगा। फिर फिक्स कैपिटल मेथड हो कि करंट कैपिटल मेथड हो, अरे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिशनल कैपिटल ऑन परमानेंट बेसिस क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ओनली। ये एक ही आइटम तो ऐसी है जो यहाँ पे आती है। हाँ, परमानेंट बेसिस पे कैपिटल विड्रॉ करता है तो भी यहाँ पे डेबिट आता है, क्योंकि वो ड्राइंग नहीं है। हाँ, खाली ड्राइंग दिया होता तो यहाँ लिखते। किसको डाउट है तो क्लियर करना प्लीज। सर अभी भी समझ में नहीं आया। तूने लास्ट लेक्चर भरा था? नो सर। ठीक है, तो वो लेक्चर देखना, समझ में आ जाएगा। क्योंकि तू लेक्चर आधा अधूरा भरेगा तो प्रॉब्लम तो होगा ही। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल आता है, इतना पता चलना चाहिए। ये कैपिटल है ना? हाँ हाँ, तो यस सर। कैपिटल में कैपिटल आएगा। कैपिटल बनाते ही कैपिटल के लिए है, तो दूसरी जगह क्यों लिखूंगा?
ठीक है, और लास्ट लेक्चर हाँ। फिर से देखना, ऐसा मैं बोलूंगा क्योंकि इसीलिए मैं ना ध्यान रखता हूँ कि कौन आया कौन नहीं आया, फिर उसका क्वेश्चन फिर उसका ही आगे वाला ही बाकी हो, फिर पीछे का चेक करने का कैसे होगा सम। तो मेहनत करनी पड़ेगी साथ साथ में तो होगा। चलो उसके बाद यहाँ पे नाम नहीं है, फिर से शुरू करते हैं ध्वनित से। बोलो ध्वनित। हाँ सर, the debit balance of current account of partner is shown on which side of balance sheet? सर एसेट। एसेट साइड, आंसर बराबर है, लेकिन एक्सप्लेन करो डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। सर पहले तो जो करंट अकाउंट होता है उसमें राइट साइड मतलब क्रेडिट साइड में जो बैलेंस दिया जाता है उसे कहते हैं डेबिट बैलेंस। वो डेबिट बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर होता है? बैलेंस शीट में। तो एसेट साइड डेबिट साइड में ट्रांसफर होता है, क्रेडिट से डेबिट। सिंपल। एक और बात बता रहा हूँ, एसेट एंड लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में है, एसेट डेबिट है, उस साइड जो भी आता है सब डेबिट बैलेंस है, लायबिलिटी सब क्रेडिट बैलेंसेस है। सोचना ही नहीं है, बैलेंस शीट में अगर बैलेंस ट्रांसफर करने को बोले तो डेबिट बैलेंस एसेट साइड होता है, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड होता है। बैलेंस शीट उल्टा है, सबको पता है। चलो वेरी गुड। उसके बाद नाम दिख रहा है यहाँ पे मिश्री, अरे सॉरी नुपुर। हाँ सर। 10. Write the journal entry to transfer drawing account to the capital account at the end of the year. ओहो, ये तो स्वामी जुद अलग हो गया। ड्राइंग अकाउंट को ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री लिखो। अच्छा पहले बता दो, ये कैपिटल अकाउंट है, ड्राइंग कहाँ लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग सर આપણે डेबिट। अच्छा, ड्राइंग डेबिट साइड। अब जर्नल एंट्री बोलो, चलो। हाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्राइंग। पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, वेरी गुड। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। कोई बोले सर करंट में भी आ सकता है, हाँ तो इसो तो दोनों लिख देने का। पार्टनर करंट अकाउंट, करंट ऑब्लिक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। वेरी गुड, परफेक्ट नुपुर। चलो इसके बाद यहाँ पे नाम है मिश्री। लास्ट क्वेश्चन मिश्री, बोलो बेटा। P&L appropriation account is a part of which account? लो, P&L appropriation account is a part of which account? P&L account. सिंपल, P&L अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसमें भी एक्सपेंस इनकम लिखते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन में भी एक्सपेंस इनकम लिखते हैं। वहां पे जो अदर पर्संस के साथ एक्सपेंस इनकम हुआ है वो लिखते हैं, यहाँ पे जो पार्टनर्स के साथ एक्सपेंस इनकम हुआ है वो लिखते हैं। सिंपल। पार्टनर को पे किया, एक्सपेंस किया, डेबिट। पार्टनर से लिया, पार्टनर से फर्म का इनकम हुआ, क्रेडिट। सिंपल। तो है P&L का ही पार्ट, ये है इसका आंसर। तो यहां पे हमारा MCQ VSQ 100% क्लियर। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, करेंगे क्या? चैप्टर नंबर 2 MCQ VSQ। पता है मुझे वहां पे 11 मार्क का क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम MCQ VSQ के लिए मजबूत तैयारी करेंगे। 30 मार्क्स तो है ही, यानी ध्यान देना है। ओके, तो यहां पे आज चैप्टर नंबर 1 100% कंप्लीट।